الرمل قالوا لن نبرح عليه عاكفين حتى يرجع إلينا موسى قال يا هارون ما منعك إذ رأيتهم قالوا ألا تتبعني أفعصيت أمري قال يا ابن أم لا. شکریہ جی. دھو رہی ہے، گوشت دھونے لگی ہے. جو چکن لے کر آئے تھے دیگ میں ڈالنے کے لیے، جو ختم شریف کے لیے، اور جمعرات بھی ہے، قرآن پاک کا ختم بھی ہے اور جمعرات بھی ہے، تو دیگ بنا رہی ہیں. اور یہاں پر جی دیگ جو ہے ہماری تیار ہو رہی ہے. دیگ جی ہماری بالکل تیار ہو چکی ہے اور آخری پروسیس میں ہے. جیسا کہ پہلے بھی آپ نے دیکھا تھا کہ علی بھائی اینڈ میں نا وہ رنگ وغیرہ ہوتا ہے وہ ڈالتے ہیں خوشبو بنانے کے لیے اور کلر بنانے کے لیے چاولوں کا. اب ڈھک کے رکھتے ہیں کچھ دیر کے لیے، پھر دوبارہ اس کا دم توڑیں گے اور پھر ختم شریف کا سامان جو ہے وہ بھی تیار ہو. یہاں پر جی آمنہ سسٹر، مہوش بیٹی اور سگنا سسٹر اور جو شکریہ ہے، ختم شریف کے لیے جو فروٹ رکھا جائے گا وہ کاٹے جا رہے ہیں. اور بچے پہلے ہی کہہ رہے ہیں جی پاپا، ماٹو کہہ رہی ہے مجھے دے دیں، اور یہ سارے بچے یہاں پہ موجود ہیں. دیکھ لیں اگر ختم. ہاں میری فرمائش نہیں لینی، مما جانے آپ جائیں. ہاں جی ہاں جی چلیں پھر آپ کاٹ لیں، ٹھیک ہے. اور دیگ بھی بننے والی ہے انشاءاللہ تعالی، اور ختم شریف ہوگا. اور جو قرآن پاک ہے وہ بڑی کثرت کے ساتھ پڑھا جا رہا ہے. اللہ پاک خیریت فرمائے، آمین ثم آمین. اب جی علی بھائی ختم کے لیے جو چاول ہیں وہ نکال لے ہیں، تو دم توڑ دیتے ہیں. سب سے پہلے جو ہے ختم شریف کے لیے نکالیں گے چاول. حافظ صاحب آئے بیٹھے ہیں عصر کی نماز پڑھ کر، ہم نے بھی نماز پڑھ لی ہے عصر کی. ماشاءاللہ. علی بھائی وہ نا ختم شریف کے لیے سب سے پہلے نکالتے ہیں. الرحمن الرحيم هو الله الذي لا إله إلا هو الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر سبحان الله عما يشركون هو الله الخالق البارئ المصور. ختم شریف جی ہو چکا ہے. اللہ پاک کا لاکھ لاکھ احسان ہے. اب جی کھانا دیتے ہیں جو طلبہ کرام آئے ہیں اور بچے آئے ہیں، حافظ صاحب آئے ہیں قرآن پاک پڑھنے کے لیے، سب سے پہلے ان کو دیتے ہیں اور اس کے بعد پھر اپنی فیملی کو دیں گے، محلے داروں کو دیں گے انشاءاللہ. جب سے بھائی محمد علی کی وفات ہوئی ہے اس ٹائم سے ہی ہماری مامی جی ہمارے پاس تھی. میں نے کہا بھئی آپ جمعرات کروا کے جائیے گا. تو اب شام کا بالکل ٹائم ہے، کیونکہ میں نے جمعرات کا وعدہ کیا ہوا تھا. میں نے کہا جمعرات تک نہیں جانا. مامی جی تو کہہ رہی تھی کہ بھئی مجھے جانے دیں. میں نے کہا بھئی خالی کو گھر کو خالی نہ کریں، تو جی اب اللہ کے حوالے کرتے ہیں. چوک اعظم والی گاڑی میں بٹھانے کے لیے احمد علی بھائی جا رہا ہے چھوڑنے کے لیے. احمد علی اچھی گاڑی ہو ہے نا تسلی سے. ٹھیک ہے مامی جی، میں فون کروں گا، پوچھوں گا میں آپ کو. اللہ خیریت سے پہنچائے. جی تو میرے پیارے بہن بھائیوں، شام کا ٹائم ہو چکا ہے اور جو بھائی محمد علی کا جمعرات کا ختم شریف تھا وہ ہم نے کر دیا ہے. اور کافی بہن بھائیوں کی ریکویسٹ آ رہی تھی کہ صدیق بھائی جو ہونا تھا وہ تو اللہ پاک کی رضا ہے. یہ جو معاملہ آپ کے ساتھ ہوا ہے تقریباً سب کے ساتھ ہوتا ہے. آپ یقین کریں، ایک ہماری سسٹر نے کہا کہ میں اپنے جو بیٹا تھا 21 سال کا، اس کی تصویر اور محمد علی کی تصویر کو اکٹھے کر کے دیکھ کر روتی رہی ہوں. ایک اور سسٹر کی کال آئی، شاید مجھے نہیں پتا وہ کس جگہ سے تھی، دماغ میرا جو تھا نہیں کام کر رہا. انہوں نے کہا کہ میں بہت روئی ہوں میرے بیٹا، کیونکہ میرے بیٹے کا نام بھی محمد علی ہے، اور وہ بہت روئی جب انہوں نے کال پہ بات کی میرے ساتھ. تو آج میرے پاس کالیں آئی ہیں کہ صدیق بھائی اللہ پاک آپ کو صبر دے. یہ بہت ہی دکھ کی گھڑی جو ہم آپ کے ساتھ شریک ہیں برابر کے، لیکن آپ مہربانی کریں اپنی زندگی کا نیا آغاز کریں اور اپنی جو ویڈیو ہے بنانا شروع کریں. تو بہت ہمت کر کے، ہمت نہیں بڑھ رہی تھی جیسا کہ آپ نے دیکھا ہے. کل بھی ویڈیو نہیں بنا سکے، پرسوں بھی نہیں بنا سکے.
तो हिम्मत करके इंशाअल्लाह ताला कल का जो सूरज तुलू होने वाला है, अल्लाह पाक खैर करे, हम अपनी वीडियो का बाकायदा आगाज़ करेंगे। और जिन मेहमानों ने अपने घर जाना है, आमना सिस्टर ने जाना है और कज़न ने जाना है, जो चाचू की बेटी हैं राबिया सिस्टर ने वापस जाना है, लेकिन उनकी गाड़ी सही नहीं है, सुबह इंशाअल्लाह उनको रवाना करेंगे। और बहनें जो हैं इन्होंने भी अपने घर जाना है, अपने अपने कामों पे लगेंगे, रोज़ी करेंगे बच्चों की। लेकिन एक परेशानी यहाँ पर और बनी है हमारे साथ, जो अपने बहन भाइयों के साथ शेयर करना मेरे लिए बहुत ज़रूरी है, क्योंकि आप भी मेरी फैमिली हैं, मेरे बहन भाई हैं। यकीनन खून का रिश्ता ही ज़रूरी नहीं होता है, सास का रिश्ता जो होता है बहुत बड़ा होता है। अब ये मेरी फैमिली जो है, मेरे बुज़ुर्ग हैं, ये मुझे कह रहे हैं कि भाई आप इस घर को खाली कर दें, ये आपके लिए अच्छा नहीं गुज़रा। लेकिन मेरा एक ये जहन है, जो भी होता है अल्लाह पाक करता है। इस घर में मुझे खुशियाँ भी बहुत मिली हैं, जैसा कि आपने देखा है अल्हम्दुलिल्लाह। मैंने इस छोटे से चैनल पर, इस चैनल की कोई बात नहीं है, ये आपका चैनल है, आप सपोर्ट करते हैं, आप खुद इसके मालिक हैं। हमारी फैमिली में कोई भी इसका ओनर नहीं है, आप इसके बड़े हैं। अल्हम्दुलिल्लाह इस आपके चैनल ने बहुत सारे गरीबों का और बहुत सारे हकदारों का जो हक पहुँचाना था इस चैनल के ज़रिए पहुँचा है। आप इस वीडियो हमारी इस चैनल पे गवाह हैं अल्हम्दुलिल्लाह। और दूसरी टेंशन यहाँ पर ये बनी हुई है कि जो हमारा विलेज है इसको हाई अलर्ट कर दिया गया है सैलाब की सूरत में, कि ख़तरा बना हुआ है सैलाब का। तो आपने बहुत सारी दुआ करनी है, जैसे कि बारिशें आई हैं, बहुत नुकसान हुआ है विलेज में, पूरे पाकिस्तान में जहाँ जहाँ बारिशें हुई हैं, जिसकी वजह से और माल मवेशी में बहुत परेशानी बनी हुई है। अल्लाह पाक हमसे शायद नाराज़ है, अल्लाह पाक हमसे राज़ी हो जाए और ये जो परेशानियाँ हमारे पे आई हैं, अल्लाह पाक इस परेशानियों को दूर करे। तो आज की शाम की वीडियो, आज के दिन की, ये हमारे लिए एक यादगार है। फिर ये पता नहीं हमारी ज़िंदगी में ये दिन दोबारा, ये साल दोबारा, ये साल तो नहीं आना, अलबत्ता इस नए साल का ये महीना ज़रूर आएगा और ये दिन भी ज़रूर आएगा। और पता नहीं कि हम में से कौन होगा कि कौन नहीं होगा। आखिर में ये बात करके मैं इजाज़त चाहूँगा कि हमें भी आखिरत की तैयारी करनी चाहिए और अल्लाह के जो बनाए हुए हुक्म हैं, जैसा कि नमाज़ पढ़ें, दरूद पाक पढ़ें कसरत के साथ, अल्लाह पाक मुझ समेत हम सबको ये तौफीक करे, तौफीक दे कि हम भी पाँच जगाना, जैसे हमारा भाई नमाज़ पढ़ता था, हम भी 5 वक्त की नमाज़ पढ़ें, दरूद पाक पढ़ें। बाकी यूट्यूब पर काम करना हमारी मजबूरी है, हमारे बच्चों की रोज़ी है, इसको तो हम छोड़ नहीं सकते और आपने इसको सपोर्ट करते रहना है। सब बहन भाइयों का जिन्होंने मेरे पास कलाम पाक पढ़ के भेजे, वो हमने भाई मोहम्मद अली की रूह को इसाले सवाब कर दिए हैं। आपका दिल से शुक्रिया अदा किया जाता है मेरी पूरी फैमिली की तरफ से। और आखिर में एक वीडियो का क्लिप शेयर किया जा रहा है, बहुत ही तकलीफ दे ये क्लिप आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। अगर कोई बहन भाई देखकर इन भाई की सपोर्ट करना चाहे, क्योंकि इनका जो घर है सारा ही बारिश की वजह से गिर चुका है, कोई सपोर्ट करना चाहे तो दिए हुए मोबाइल नंबर पे आप रब्ता करके इन भाई की ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट करें। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। सामने आप बादल का मौसम देख सकते हैं, कितने शदीद काले स्याह बादल हमारे विलेज में आ चुके हैं। और आपको दिखाते हैं कि मैं बहुत ही दूर सफ़र करके पहुंचा हूं, यहाँ पे बहुत ज़्यादा नुकसान हो गया है। और अब ज़रा कैमरे के सामने होते हैं और आपको सारी डिटेल इस घर के बारे में बताते हैं कि यहाँ पे क्या नुकसान हुआ है और सारा जो मामलात है, जिन भाई का ये मकान का नुकसान हुआ है उनको भी सामने लाते हैं और उनसे पूछते हैं कि भाई क्या हुआ है यहाँ पर। जी तो मेरे प्यारे बहन भाइयों, जैसा कि आप देख सकते हैं कि बारिशों की वजह से और सैलाब की वजह से बहुत ज़्यादा तबाही हुई है हमारे विलेज में और पूरे पाकिस्तान में बहुत ज़्यादा नुकसान हुआ है। और जैसा कि आपको पता है कि मेरे नौजवान भाई की डेथ हुई है, मैं बहुत ही सदमे में हूँ इस टाइम भी, लेकिन मुझसे इनका दुख देखा नहीं गया। और मैं अपने घर से तकरीबन 20 किलोमीटर कम बेश यहाँ पहुँचा हूँ। इस भाई का जो दुख है, दर्द है, अपने बहन भाइयों के साथ शेयर करते हैं।
बहुत ज़्यादा बारिश आ रही है 2 दिन से हमारे विलेज में। इस टाइम भी काले सियाह बादल हैं। तो इस भाई का बहुत ज़्यादा नुकसान हो गया है। ये कच्चा घर था, कमरा बना हुआ था। तो इसके 5 बच्चे हैं। रात बच्चे इसके अंदर दब गए थे, लेकिन सब बस्ती वालों ने मिलकर जोर लगाकर बच्चों को जो है बाहर निकाल लिया है। सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह पाक का बड़ा एहसान है, कोई जानी नुकसान नहीं हुआ, लेकिन कोई छोटी मोटी चोट वगैरह या खराशें वगैरह बच्चों को ज़रूर आई हैं। लेकिन मैं यहाँ पर एक रिक्वेस्ट करूँगा अपने प्यारे बहन भाइयों से, जिस तरह पहले भी आप हमें सपोर्ट करते रहे हैं, अल्हम्दुलिल्लाह आपने मेरा बड़ा भरम रखा है, मेरी इज़्ज़त रखी है। जिस तरह पहले एक हमारे मोहल्लेदार का घर गिरा, आपकी ताउन से अल्हम्दुलिल्लाह वो तामीर हो चुका है। पूँछ टप गई, ऊँट टप गया है, पूँछ बच गई है, लेकिन यह है कि उसका कमरा तैयार हो चुका है। इंसान तो कुछ भी नहीं दे सकता, लेकिन अल्लाह पाक की ज़ात जो है बहुत बेनियाज है, वो तो सब कुछ देख रही है। इस भाई का नुकसान हो चुका है। मेरी देखने वाले तमाम बहन भाइयों से बहुत हाथ जोड़कर मुअद्दबाना गुजारिश है कि आप जितना हो सके इस भाई के साथ आप तावन करें। इसका जो कमरा है बनवाने में आप हमारे साथ हेल्प करें। जो साहिब तौफीक है, जिनको अल्लाह पाक ने बेबहा दिया हुआ है, अल्लाह पाक के ख़जाने में किसी चीज़ की कमी नहीं है, ये हमारा ईमान है। जब आप किसी गरीब की, किसी हकदार की आप हेल्प करेंगे तो अल्लाह पाक आपको गैब से मदद ज़रूर देगा। ये behैसियत मुसलमान हमारा ईमान है। तो भाई इस टाइम बहुत सदमे में है, क्योंकि ये बिल्कुल खुले में बैठा है। इसके पास कोई भी यानी कि ख़ास इंतज़ाम नहीं है, अपने बच्चों को सर छुपाने के लिए जगह नहीं है। इस टाइम भी जो बारिश है दोबारा शुरू हो चुकी है। और मेरी एक बात हाथ जोड़कर, भाई भी आपसे हाथ जोड़ता है, मैं भी हाथ जोड़ता हूँ, भाई हाथ जोड़ते हैं और मुअद्दबाना गुजारिश करते हैं कि आप बढ़ चढ़ के भाई के इस कमरे में हिस्सा लें। जितनी माली इमदाद हो सके भाई के साथ माली इमदाद करें। बारिश आ रही है अब, क्योंकि भाई का आज जुमेरात है, ख़त्म शरीफ भी है और मैंने घर जाना है। दिए हुए मोबाइल नंबर पर आप स्क्रीन पर जो नंबर चल रहा है, इस पर आप रब्ता करके भाई की बहुत ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट करें। बहुत शुक्रिया, जज़ाकल्लाह।